सेकेंड पार्ट आज की क्लास का। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के कुछ रीजन सुने हमने, कुछ बच्चों ने सुने, कुछ बच्चों ने नहीं सुने, कोई बात नहीं। तो 3 हेड्स में पॉलिसी डिवाइड करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लिबरलाइजेशन। Prior to 1991, there were a large number of government restrictions in India in the areas of licensing, import and export trade, dealings in foreign exchange. बहुत सारी restrictions थी, licensing की, import and export की, different dealings की, in foreign exchange. In July 1991, a package of economic reforms were announced, which marked the beginning of the process of liberalization. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। लिबरल हो जाना इन योर अप्रोच। लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। पहले ऐसा नहीं था कोई भी आके काम करे, लाइसेंसिंग की जरूरत है और कितने सारे वो जो IPR 1956, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, कुछ इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर, कुछ में प्राइवेट सेक्टर आ तो सकता है बट लाइसेंस के बिना नहीं आ सकता, उसमें भी एक्सपेंशन करना है तो भी लाइसेंसिंग, डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो भी लाइसेंसिंग। लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। Liberalization involves deregulation and reduction of government controls and greater autonomy, greater independence, greater freedom of private investment to make the economy more competitive. Under this process, business is given free hand and is allowed to run on commercial lines. The purpose of liberalization was, number one, to unlock the economic potential of the country by encouraging private sector and multinational corporations to invest and expand. To introduce much more competition into economy and creating incentives for increasing efficiency of operations. The purpose of liberalization क्या था? Number one, to unlock the economic potential of the country by encouraging private sector. अगर आप restriction हटा देंगे, करें आपको जितना produce करना है आप करो, you are unlocking the production potential, the economic potential by encouraging the private sector and multinational corporations to invest and expand. To introduce much more competition into the economy and creating incentives for increasing efficiency of operations. The economic reforms taken by the government under liberalization include the following. क्या है? Industrial sector reforms, financial sector reforms, tax reforms, foreign exchange reforms and trade and investment reforms. Liberalization के अंडर काफी सारी रिफॉर्म्स आई थी डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड। एक एक करके स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड क्या थी, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्या थी, टैक्स रिफॉर्म्स क्या थी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या थी और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स क्या थी। पहला, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या थी, एक एक करके। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. In order to make the necessary reforms in the industrial sector, the government introduced its economic policy, the new industrial policy, on July 24th July 1991, exact date July 24th. The various measures under the industrial policy include, number one, reduction of industrial licensing. पहले बिना लाइसेंस के आप नया बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। Reduction in industrial licensing. The new policy abolished industrial licensing for all the projects. Abolished industrial licensing for all the projects except for 18 industries. पहले तो आप कोई भी काम बिना लाइसेंसिंग के कर ही नहीं सकते थे। अब उन्होंने क्या करा कि नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये 18 है जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है,
वो भी आगे जाके सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज बच गई थी जहां पे आपको लाइसेंसिंग, ऐसा नहीं काम नहीं कर सकते, काम उसमें भी कर सकते हो, बट वो बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते। क्या बची? डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes, electronic, aerospace and defense equipments, industrial explosives, specified hazardous chemicals। कह रहे ये जो सेक्टर्स हैं, ये सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इनकी अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुई इट विल हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो उन सेक्टर्स को उन्होंने कहा कि ठीक है कर तो लो काम, ठीक है पैसा भी जरूरी है, करना तो सब कुछ पड़ेगा, बट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी लाइसेंसिंग के बिना। ये नहीं बाकी सब में से लाइसेंसिंग हटा दी, तो पहले 18 फिर 5 बच गई थी जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस की जरूरत होगी। नो लाइसेंसेस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स, expand or diversify the existing line of manufacture apart from the above 5। बाकियों के लिए कोई लाइसेंसिंग नहीं, चाहे आपको नया सेटअप करना है चाहे एक्सपैंड करना है, कुछ भी। However, compulsory licensing is required for the above 5 industries on account of environmental, safety and strategic considerations। So number 1, massive reduction in industrial licensing। Second, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपीआर 1956, शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्रीज केप्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर, फिर 12 इंडस्ट्रीज जिसमें इनिशियली पब्लिक सेक्टर सेटअप करेगा, उसके बाद ट्रांजिशन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, बाकी सब कह रहे हैं कि जिसको जो करना है करो। तो वो रोल बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया था, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। One of the striking features was the substantive reduction in the role of the public sector in the future industrial development of the country. The number of industries exclusively reserved for the public sector reduced from 17 to the following 8 industries. From 17 to 8, तो schedule में 17 industries थी, it was reduced to 8 industries। क्या क्या बच गई थी? arms and ammunition and allied items of defense equipment, defense aircraft and warships, atomic energy, coal and lignite, mineral oils, mining of iron ore, manganese ore, chrome ore, gypsum, sulfur, gold, diamond, copper, lead, zinc, tin। याद नहीं करने ये सब, just read once, और but मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, कोल एंड लिग्नाइट। अब इतने सारे मिनरल्स आप याद करने लग गए तो फिर केमिस्ट्री के दिन याद आ जाएंगे। नेक्स्ट, मिनरल्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एटॉमिक एनर्जी, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज। लास्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो कुछ आपको मतलब बार बार रीड करेंगे, याद होने लग जाएंगे, बट इतने जो सारे इन्होंने 6th में, हाँ 6th में जो इतनी लंबी लिस्ट दी है मिनरल्स की, वो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड वंस। तो डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 इंडस्ट्रीज तो ओनली 8 इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन, हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रिजर्वेशन हुई थी कुछ प्रोडक्ट्स की कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो है वही काम कर पाएंगे उसकी। नाउ डी रिजर्वेशन, तो वो हटा दी रिस्ट्रिक्शन, कह रहे तुमसे तो हो नहीं रहा, बेकार घटिया क्वालिटी के तुम प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तुम रहने दो, बाकियों को बनाने दो, कम से कम इंडिया का नाम तो खराब नहीं होगा। तो डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. The investment ceiling on plant and machinery for small undertakings enhanced to ₹1 crore। उस टाइम पे क्या थी? 5 लाख। ये 1991 की बात बता रहे हैं। It was increased to 1 crore, आज की डेट में 5 करोड़, और बट उससे कोई नहीं, आप 1 करोड़। In many industries, the market was allowed to determine the prices through forces of market and not by directive policy of the government। तो government regulation हटा के let the market forces decide the price mechanism। Monopolies and restrictive trade practices act, ये एक्ट लेके आए थे, MRTP एक्ट।
MRTP एक्ट का पर्पस क्या होता है? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोपोली। कह रहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज the producer or the entrepreneur who has the consolidated or if they have majority of the resources for required for producing a particular commodity, then they will try to dominate the market, then they will try to exploit the consumers कि और किसी के पास तो मिल नहीं रहा, हमसे ही लेना पड़ेगा। To prevent such a situation, MRTP Act was introduced ताकि वो monopolies create ना कर पाए। पहले गवर्नमेंट के पास मोनोपोलीज होती थी तो वो होती थी नेचुरल मोनोपोलीज, वो तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के क्रिएट करते थे, उनका पर्पस कभी भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, उनका पर्पस था कि सारा कंट्रोल हमारे पास रहे सो दैट वी कैन मेक द नेसेसिटीज अवेलेबल एट सब्सिडाइज्ड एंड अफोर्डेबल रेट्स। उनका पर्पस एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, उनका पर्पस था सस्ते में वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। बट अगर मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर में कोई क्रिएट करके बैठ गया, जैसे कि जियो ने करने की कोशिश करी, तो भारतीय एयरटेल ने कंप्लेंट कर दी थी कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि अगर इतना ये फ्री में ही देते रहेंगे कनेक्शंस तो कैसे हो सकता है, कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, वो फ्री में बांट रहे हैं। वो तो इसलिए बांट रहे हैं कि लोग एयरटेल से छोड़ के जियो पे आ जाए, कंपनीज बंद हो जाए और उसके बाद जियो अपनी मर्जी के प्राइसेस चार्ज करेगा। आपको क्या जिंदगी भर थोड़ी ना कोई फ्री में प्रोवाइड कर पाएगा, तो वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट तब आई थी, अबॉलिश हो गई, अब कॉम्पिटिशन एक्ट आ गई है, बट स्टिल किसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में आता है MRTP एक्ट। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम्स, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स, मर्जर, अमैल्गमेशंस वर एलिमिनेटेड। कह रहा लिबरलाइजेशन की वजह से उनके ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, तुमने जितना एक्सपैंड करना है करो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मोनोपोलीज क्रिएट हो रही थी। तो क्या इंट्रोड्यूस करा, MRTP एक्ट तब हुई थी। MRTP एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 व्हिच इज मोर लिबरल। The Competition Act of 2002 was amended by the Competition Amendment Act of 2007 and again by the Competition Amendment Act of 2009। 1991 में तब क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब उस टाइम पे क्या चल रहा था, MRTP एक्ट, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इट वाज फर्दर अमेंडेड इन 2007 एंड देन 2009। क्या थी ये, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी। Financial sector includes financial institutions like commercial banks, investment banks, stock exchange operations, and foreign exchange market. The financial sector in India is controlled by the central bank. India के लिए RBI हमारा central bank. RBI is known as the apex or the supreme body as it occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country. RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves. SLR fixes interest rate, repo rate, reverse repo rate, and nature of lending to various sectors. Margin requirements क्या होंगी, selective credit controls apply करते हैं, ये सब डिसीजन कौन लेता है, RBI। बहुत ही important point है। The reforms under financial sector were most important change in the role of RBI. Before the new economic policy, RBI was the regulator, controller. The role was shifted from the regulator to the facilitator. पहले सारी decisions कौन लेगा, कमर्शियल बैंक लोन देंगे कि नहीं देंगे, किस रेट पे देंगे, उससे ज्यादा कोई उसमें कोई वेरिएशन नहीं। RBI सब कुछ डिसाइड करता था, रेगुलेटर था। फिर उसके बाद बना वो फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कह रहे मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए हूं, मैं तुम्हें इस रेट पे दूंगा लोन, तुमने आगे जिस मर्जी रेट पे देना है तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे इस रेट पे ले लूंगा, तुमने लोगों से उनको कितना इंटरेस्ट देना है तुम्हारी मर्जी, बट CRR SLR मैं फिक्स करूंगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट मैं फिक्स करूंगा,
बट आपने आगे मार्केट में किस रेट पे इंटरेस्ट देने, लोन देने हैं, वो आपकी मर्जी। मैं आपकी बस हेल्प करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, रेगुलेटर नहीं हूँ, फैसिलिटेटर हूँ। द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. As a result, financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the Reserve Bank of India. कह रहे आपकी मर्जी है, हमें हर चीज के लिए परमिशन की जरूरत नहीं. As a regulator, prior to liberalization, RBI used to fix interest rate structure for commercial banks also. कि commercial bank आगे किस rate of interest पे लोन देंगे वो RBI decide करता था. After changing the role as a facilitator, post liberalization, RBI now facilitates the free market forces to act accordingly. कह रहे आपकी मर्जी है, लोग ले रहे हैं लोन्स, आप चार्ज कर लो हायर इंटरेस्ट, नहीं कर रहे तो कम कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारी मर्जी है. Greater autonomy, greater independence, greater freedom has been ensured for the financial institutions for their functioning. तो ये बहुत important financial sector reform हुई थी, change in the role of RBI. Origin of private banks, इससे पहले majorly commercial banks but government owned, SBI, PNB, ये सब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UTI, ये सब क्या थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कब आए थे, लिबरलाइजेशन के बाद. प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक भी हो सकता है, ICICI, HDFC है इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं, HSBC, RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड. The reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. ध्यान से देखेंगे. For example, Indian banks like ICICI, HDFC, foreign banks like HSBC, Standard Chartered, they increased competition and benefited the consumers. Better रहेगा यही banks हम use करें. तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड आया था कि नहीं आया था, वो शायद थोड़ा बाद में आया था. HSBC एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक, बट ये तो तब का है, आज की डेट में तो और भी बहुत सारे हैं. एंड प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक, ICICI. तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बैंक्स was raised to around 51%. जैसे ही आप 50% के ऊपर परमिशन देते हैं, इसका मतलब आपने उनको ये परमिशन दे दी है कि वो कंट्रोल गेन कर सकते हैं. जैसे किसी के पास 51% शेयर आ गए तो दे हैव द मेजॉरिटी शेयर्स. बाकी सब एक ही बंदे के पास हो तो भी 49 ही हो सकते हैं, तो मेजॉरिटी तो उनके पास आ गई, तो दे कैन कंट्रोल और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो 51% की परमिशन देना, कह रहे किसी बैंक में इन्वेस्ट करो, आप अपने हिसाब से उसको चलाना, अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना. इससे पहले 50 से 49% थी, 51 करते ही उससे आपने उनको कंट्रोल की अथॉरिटी दे दी. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स such as merchant bankers, mutual fund, pension funds were now allowed to invest in the Indian financial markets. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders. Correct? Liberalization हुई थी, relaxation हुई थी, but कुछ aspects जैसे कि reserve requirements उन्होंने अपने पास ही रखी. करें इतना reserve तो to safeguard the interest of the account holders. Next financial sector reform is in the expansion process. Banks were given freedom to set up new branches. करो expand जितना करना है, आपकी मर्जी है. After fulfillment of certain conditions. But हम permission दे रहे हैं आपको, ये condition fulfill कर दो, फिर हमारे से कोई आपको approval, कोई licensing की कोई जरूरत नहीं है, खोलो जितनी branches खोलनी है. तो financial sector reform बहुत important थी. Change in the role of RBI. Origin of private banks, increase in the limit of foreign investment, ease in the expansion process, branch expansion, new branches were allowed to be set up.
आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस बट विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। करे कंडीशन है ये फुलफिल कर दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है